everyone, welcome back to Excru Aviation. This is part 2 of handling customer complaints. तो आज मैं इसी लीग के अंदर आपको आगे चल के समझाऊंगी दो और इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में। स्टार मेथड वाली रील देख ली ना आपने इंस्टाग्राम पे? अभी भी नहीं देखी? ज़रूरी है आपके लिए, ज़रूर देखो उसे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी स्टार मेथड कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए हाउ वुड यू हैंडल अ कस्टमर कंप्लेंट, तो आप स्टार मेथड के थ्रू उसको कैसे आंसर करेंगे। तो शुरू करें अपने रिवॉर्डिंग करियर की जर्नी को। लेट्स बिगिन। स्टार मेथड प्रोफेशनल मेथड है बट इफेक्टिव मेथड भी है। आज इसी को समझेंगे। तो स्टार मेथड में S stands for situation. So first and foremost, I will try and understand the situation, that what exactly is bothering the customer. Whether it is about in-flight services, or is it about the ground handling, or maybe a problem in his itinerary or a journey on board the aircraft with us. So I will first evaluate and understand from him that what exactly is the situation. Once you understand the situation, then comes to your task. So you need to figure it out what needs to be done in this situation, followed by your action plan. तो अब आप क्या एक्शन लेंगे कस्टमर को प्लीज करने के लिए या फिर उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो मान लीजिए अगर एक कस्टमर कंप्लेन कर रहा है अबाउट द सीटिंग इशू, तो आप क्या करेंगे? सीटिंग इशू के केस में पहली चीज या तो आप चेक करेंगे कि फ्लाइट पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। So if there is another seat available on board the aircraft, you would try and swap the seats for the customer to make him more comfortable. If there are no seats available on the flight, then in that case you will try and check if there is a staff traveling on the flight, and you probably can go and request them if they can change the seat. But change seat करने से पहले समझना ये जरूरी है कि उसको सीट चेंज क्यों करनी है। मान लीजिए अगर कस्टमर सीट स्वैप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उसके पीछे वाला कस्टमर उसको सीट रिक्लाइन नहीं करने दे रहा, तो इस केस में आपको सीट चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पीछे वाले कस्टमर से भी बात करने की जरूरत है। ड्यूरिंग द फ्लाइट इट इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हैव रेस्ट, एंड कस्टमर हैज ऑल द राइट्स टू रिलैक्स ऑन द सीट। अब अगर सीट में फीचर है रिक्लाइन करने का, तो कस्टमर का राइट बनता है उसे यूज करने का। तो अब आप कितने असर्टिवली, पोलाइटली एंड प्रोफेशनली इस चीज को हैंडल करेंगे, ये तो आपको हैंडल करने पे ही समझ आएगा। पर जैसा कि मैंने अपनी फ्लाइट में किया है, आई हैव ऑलवेज मेड द कस्टमर सीटेड बिहाइंड अंडरस्टैंड दैट द कस्टमर इन फ्रंट हैज द राइट टू रिक्लाइन द सीट बिकॉज ही वांट्स टू रिलैक्स, and it is not nice for me to make him sit upright and punish him throughout the flight just because you do not want to recline your seat. Sir, please have a heart to understand that he is also a human being. Maybe he is going through some problems that he must recline his seat. So I would suggest you that you can also recline your seat in order to get better gap between the seats. क्योंकि होता क्या है, जब आगे वाला इंसान सीट रिक्लाइन करता है तो वो थोड़ी क्लोज आ जाती है पीछे वाले इंसान पे, तो ऑलमोस्ट आपकी सीट आपके फेस से थोड़े ही डिस्टेंस पे होती है। तो आपको एक तो सीट IFE देखने में प्रॉब्लम होती है, बट दूसरी चीज हो सकता है आपको सफोकेशन भी हो सकती है इससे। So you never know. We are all different human beings, come with the different beliefs and the mindset and behaviors also. So in that case, you would request the customer seated behind to recline his seat as well. That's imperatively important. बट अगर मील सर्विस चल रही है और आप खाना खा रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस केस में 100% you can go on and request the customer who has seated in front to upright his seat, because the customer at the back wants to eat his meal on board the aircraft. So in that case, you will tell the customer to upright his seat at least for the meal service. But once the meal service is over, they can go on again and recline the seat and relax on the flight. तो आप अगर ये सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करनी हो तो फिर से आ जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द कस्टमर्स वर्ड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन, व्हाट इज बॉदरिंग हिम एंड द एरिया ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर असिस्टेंस। So T stands for task. I will evaluate and figure out the task that I can take or the action that I can take in order to resolve this issue. And A stands for the steps that I would take to ensure that the customer is happy. The efforts that I will make certainly would please the customer on a psychological area where he would understand that I am making efforts to help him out in this situation. At last, R stands for results. So I will ensure a positive outcome and positive response from the customer, and if not, I would be willing to take a positive feedback from him or her too. Right? So this way you can help and make the interviewer understand that you are someone who is willing to make efforts to make customers' journey comfortable on board their flight. Remember, customer service में मैं अपने सभी स्टूडेंट को ये चीज जरूर सिखाती हूँ। A customer may forget how you look, may forget your name, but a customer will never forget how you make them feel. सही बोल रही हूँ ना? कभी आपने भी किसी शॉप पे गए हो और शॉपकीपर ने बदतमीजी से बात की है
और फिर आप उस शॉप पे कभी भी नहीं गए, आपने अपने घर पे आके बोला कि मैं वहां आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट हो तो कई टीचर्स के साथ भी ऐसा होता है कि वो इतने रूड होते हैं स्टूडेंट के साथ कि हमें ऐसा लगता है कि मैं उस मैम से कभी भी नहीं पढ़ूंगा या मैं उस सर से कभी बात नहीं करूंगा। होता है ना, ये सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज हाउ दे मेड यू फील। If somebody makes you feel small, screams, shouts at you, and have no respect for you, you will never ever last in that company. तो ऐसा ही कस्टमर के साथ भी होता है, और कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर्स का ध्यान रखना इम्पेरेटिवली बहुत जरूरी होता है, बिकॉज नो कस्टमर, नो फ्लाइट्स, नो cabin crew required on board the aircraft. So I hope this has made this answer clear. अब आप आराम से बैठ के अपने आंसर्स को ड्राफ्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ आया है, और अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन आंसर जरूर ड्राफ्ट करें। ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है जो ज्यादातर कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि आप कस्टमर से ही तो डील कर रहे हैं ना। तो हमें चाहिए कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ वो हो जो इन सभी सिचुएशंस को अच्छे से प्रोफेशनली एफिशिएंटली हैंडल कर सके। अब आते हैं अपने लास्ट मेथड पे, जो कि होता है लीप मेथड। दैट मीन्स LEAP। लिसन टू द कस्टमर केयरफुली, empathize with whatever the situation is, apologize for the misunderstanding or the inconvenience caused, and P stands for provide a solution. हर कस्टमर कंप्लेन में कस्टमर आपसे सोल्यूशन की उम्मीद करता है कि आप उसके लिए कुछ तो करें, which can help him understand that you are trying your level best to resolve the problem. So आप लीप मेथड को भी यूज करके कस्टमर कंप्लेन को हैंडल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्रूवन स्टडीज बेस्ड मेथड हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रीज के अंदर एंड डिप्लोमास के अंदर भी सिखाए जाते हैं। तो ये इफेक्टिव मेथड हैं, इन्हें पढ़ के समझ के अपने नोट्स बनाएं और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। 2 से 3 सिचुएशंस लेके देख सकते हैं और उसमें इसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं। So I hope these methods will help you land to your dream job. Now it is my job to sign out now so that I can prepare some more stuff for you. In your journey of aviation, I wish you all the very best.